عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جنيد سعيد الندبي. أيها الطلبة، وأنتم تعلمون أنكم تتعلمون اللغتين على هذه القناة. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دراصل جو سوالات ہیں، سوال نمبر جو سبق نمبر آپ کا 12 ہے، سبق نمبر 12 الفطور، اس کے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے مسم الشہر الذی یصوم الناس فی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ سوالات کے جوابات بھی کرا دیا کیجئے، جبکہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی سبق ایسا نہیں جو ہم نے کرایا ہے کہ جس کا آپ کو جواب نہ ملا ہو۔ آخر میں جو کچھ کوشچنس ملتے ہیں، جو سوالات ملتے ہیں، وہ ہم ضرور کراتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کرائے ہیں وہ۔ تو آپ پلیز ایک بار پلے لسٹ میں جا کر کے آپ ایک بار صحیح سے غور و فکر کریں گے تو آپ کو جوابات ملیں گے، 100% ملیں گے، شیورلی ملیں گے۔ اگر نہیں ملتے ہیں تو ہم اس سے براہ راست کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا وہ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ 97607086 اگر آپ انڈیا کے باہر سے ہیں، اگر آپ سپوز کر لیتے ہیں ہمارے کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قطر سے ہیں، کویت سے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے ہیں، تو ہمارا جو نیشنل کوڈ ہے انڈیا کا +91 یہ لگانا بالکل نہ بھولیں، تبھی آپ ہم تک اپروچ بنا پائیں گے۔ تو آئیے آج کے جو سوالات ہیں ان کو بخوبی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال کیا بول رہا ہے؟ پہلا سوال بول رہا ہے مسم الشہر الذی یصوم الناس فی۔ مسم الشہر، اس مہینے کا نام کیا ہے، الذی فیہ، جس میں یصوم الناس لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مہینے کا نام کیا ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے وہ سمپل اس کا جواب ہے، جواب تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن عربی میں لکھنا کیسا ہے دیٹ میٹرز، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ لکھیں گے یہاں پر ان اسم الشہری، ان ان اسم الشہری الذی یصوم الناس فی، الذی یصوم الناس فیہ، الذی یصوم الناس فیہ، جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیا ہے، رمضان۔ تو اس اسم کا جواب ہم یہاں پر آ کر کے دے رہے ہیں کہ اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں گے۔ تو یہاں پر بولیں گے آپ ان اسم الشہر الذی یصوم الناس فیہ رمضان، ان اسم پڑھیں گے، رمضان، رمضان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہوا شہر الصیام، تو یہاں پر لکھیں گے آپ ہوا شہر الصیام، وہ روزے کا مہینہ ہے۔ بس اتنا جواب لکھ لیں گے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جواب نمبر 2 کی، سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے کیف یمکن للاہل، فیملی کے لوگوں کے لیے کیسے ممکن ہے، کیف یمکن للاہل، کیسے ممکن ہے فیملی والوں کے لیے کہ ان یرغبوا اطفالہم، کہ وہ اپنے بچوں کو ترغیب دے، انسسٹ کرے، ابھارے، انسپائر کرنا۔ رغبہ یرغب کا مطلب ہوتا ہے انسپائر کرنا۔ کیسے انسپائر کرے اپنے بچوں کو، بصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر کیا بولیں گے، کیف یمکن، کیسے ممکن ہے، تو آپ لکھیں گے وہ سمپل جواب لکھیں گے اس کا، مطلب جواب تو آپ لکھ سکتے ہیں، میٹر ہے کہ عربی میں کیسے لکھیں گے۔ تو آپ لکھیں گے یمکن للاہل، ٹھیک ہے نا، ان یرغبوا اطفالہم، چپ بیٹے چپ، ان یرغبوا اطفالہم، ٹھیک ہے نا، یمکن للاہل ان یرغبوا اطفالہم، اپنے بچوں کو ترغیب دے، بصوم رمضان، بصوم رمضان، رمضان کے روزے کے بارے میں، کس طور پر، بی این یذکروا، بی این یذکروا علیہم، علیہم، بی این یذکروا علیہم
अजर सौम, अजर सौमी, व फजलिही, व दराजतिही। ठीक है ना? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखो ध्यान देंगे। युमकिनु, मैं राब भी लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। युमकिनु मुमकिन है, लिल अहली फैमिली के लोगों के लिए मुमकिन है, अन युरग़िबू, रग़बा युरग़िब, गैन के नीचे जेर देंगे, कि वो तरगीब दें अपने बच्चों को, अतफालहुम बिसौमी रमज़ान, रमजान के रोजे की फजीलत के बारे में अपने बच्चों को तरगीब दें। किस तौर पर? बी अन यज़कुरू, के वो बयान करें, अलैहिम अपने बच्चों पर, अजर सौम रोजा रखने के अजर को, व फजलहू और उसके फजल को, व दरजतहू और उसके दर्जात को, यानी इस पर क्या क्या फजीलतें आई हैं। और आखिर में कह सकते हैं वक़द वरदा अलैहि हदीस शरीफ, यहाँ पर लिख देंगे आप वक़द वरदा। ठीक है ना? अला ज़ालिका, वक़द वरदा अला ज़ालिका। ठीक है ना? कसीर मिनल अहादीस अन्नबविय्या अला ज़ालिका कसीर। ये मानता हूं कि जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सवाल भी तो भाई लंबा था। अला ज़ालिका कसीर मिनल अहादीसी अन्नबविय्यती। इसका मतलब हो जाएगा कि इस पर हुजूर की कई सारी हदीसें वारिद हो चुकी हैं हदीस की किताबों में। वक़द वरदा अला ज़ालिका कसीरुम मिनल अहादीसी अन्नबविय्यती, अन्नबविय्यती। तो पूरा मतलब आ गया समझ में क्या कह रहे हैं? आपकी पहले वाला जो सवाल है उसका भी, जो उसकी भी इबारत बनाए। ये लो भाई, इन्ना इस्म शहरिल्लज़ी यसूमुन्नासु फीही, फीही जिसमें लोग रोजा रखते हैं उसका नाम है रमजान, रमजान है। और ये कौन है? ये हुआ शहरुस्सियामी, हुआ शहरुस्सियाम, और ये भाई रोजे रखने का दिन है, रोजे रखने का महीना है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। लिमाजा यतसहरुन्नास, लोग क्यों सहरी करते हैं? तो आइए यहाँ पर, ये था आपका जवाब नंबर 1, ये है आपका जवाब नंबर 2, और डॉक्टर साहब ये आ गया आपका जवाब नंबर 3, जवाब नंबर 3। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लोग सहरी क्यों करते हैं? तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन्नस यतसहर, ये कह देंगे यहाँ पर यतसहरुन्नास, यतसहरु। भाई तसहरा या तसहरु का मतलब होता है सहरी करना। तो यहाँ पर बोलेंगे आप यतसहरुन्नास लिअन्नहु, लोग सहरी करते हैं इसलिए कि लिअन्नहु मिन हदीसिर रसूल, मिन सुन्नतिर रसूल, मिन सुन्नतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, पूरा लिखेंगे भाई सल्लल्लाहु, एग्जाम में आप पूरा लिख करके आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग इसलिए सहरी करते हैं क्योंकि वो क्या है? लिअन्नहु मिन सुन्नतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और हदीस में आता है, क्या आता है हदीस में? कि इन इन सहर युफर्रिकु बैना सौमी, सौमिल यहूद वल मुस्लिमीन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लिअन्नहु, लिअन्नहु युफर्रिकु, वो फर्क बयान करती है, फर्क कर देती है। कौन? सहरी, सहरी फर्क करती है। लिअन्नहु युफर्रिकु बैना सियामी, सियामिल यहूद व सियामिना, व सियामिना, क्योंकि वो फर्क बयान करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप यतसहरु, सहरुन्नासु लिअन्नहु, माफी चाहेंगे, लिअन्नहु, थक गया भाई आज तो मैं, लिअन्नहु
मिन सुन्नति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। यहाँ पर लिखेंगे बिहाइसु, यहाँ पर लिखेंगे बिहाइसु, बिहाइसु बि अन्नहु, इस तौर पर कि वो क्या करती है, बिहाइसु इस तौर पर कि वो बि अन्नहु युफर्रिकु बैन सियामिल यहूद, वो यहूद के रोजों के दरमियान और हमारे रोजों के दरमियान क्या करती है, फर्क रखती है। कौन सहरी खाने से फर्क होता है, हुजूर की हदीस भी है इस पर, मुझे एग्जैक्ट हदीस याद नहीं है, माफी चाहता हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 बोल रहा है अलामाज़ा युफ्तिरु साइम, रोजा रखने वाला किस चीज पर रोजा इफ्तार करता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आप कह देंगे कि रोजा रखने वाला अल्लाह के नाम पर इफ्तार करता है। ये जवाब नंबर आपका बन जाएगा कितना, 4 बन जाएगा। अरबी में 4 ऐसे बनाते हैं, आप एग्जाम में ऐसे लिख करके आएंगे, ठीक है ना। और ये बात समझ में और आपको कोई फायदा पहुंचता है तो प्लीज लाइक करिएगा, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अला माजा युफ्तिरु साइम, रोजा इफ्तार करने वाला किस चीज के ऊपर इफ्तार करता है। तो आप बोलेंगे कि इन साइम, इन साइम युफ्तिरु अला स्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम पर, व जिक्रिही, और उसके जिक्र पर रोजा इफ्तार करता है। इन साइम, इन साइमा, इन की वजह से साइम क्या बन जाएगा, मंसूब बन जाएगा। युफ्तिरु, इफ्तार करता है, अलस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम पर, व जिक्रिही, और उसके जिक्र पर क्या करता है, इफ्तार करता है। बस इतना काफी रहेगा। आखिरी सवाल है आपका, सवाल नंबर 5, उज़कुरु दुआ, उज़कुरी दुआ अल्लज़ी यक़ूलुहु साइम इंद इफ्तारिही, ठीक है ना। उस दुआ को याद, उस दुआ को लिखो, उस दुआ को बताओ, ठीक है ना, जिसको रोजेदार बोलता है या पढ़ता है, इंद इफ्तारिही, अपने रोजे के इफ्तार के मौके पर। तो कुछ नहीं है, वो ये पूरी दुआ है, आप इसको नकल कर देंगे, ठीक है ना। इसका जवाब लिखने से पहले आप बोलेंगे अदुआ, यहाँ पर इसका जब पूरा जवाब लिखेंगे ना आप, तो जवाब में यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, जवाब नंबर ये बन जाएगा 5, कि अदुआ, शुरू ऐसे करेंगे अपना जवाब, अदुआ अल्लजी यज़कुरुहु, ठीक है ना, ये यक़रउहु कुछ भी कह देंगे आप, अल्लदी यज़कुरुहु जिसको जिक्र करता है या पढ़ता है, यहाँ पर यक़रउ भी पढ़ सकते हैं आप लोग, यक़रउहु, ठीक है ना। यहाँ पर यदउहु भी बोल सकते हैं आप, अद्दुआ अल्लज़ी यज़कुरुहु, ये यक़रउहु, ये यदउहु, अस्साइम कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, अस्साइम वो दुआ जो कि रोजेदार जिसको पढ़ता है, इन द इफ्तार, इफ्तार के वक्त, हुआ, वो है, और हुआ के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, और उसके बीच में यहाँ पर दुआ लिख देंगे आप। ये दुआ आपको मैंने बताई दी है, इसका तर्जमा पूरा मैंने आपको बताया था, ज़हबज़ ज़मऊ, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, रगे तर हो गई, वसबतल अजरु, अजर साबित हो गया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। बस इसके बीच में इतने हिस्से में आप लोग हुआ के बाद में दुआ लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि लिखी हुई हो पहले से, वो तो मेरे यहाँ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस पर एराब लगाना चाहे तो आप लिख देंगे अद्दुआउ अल्लज़ी यज़कुरुहु, यज़कुरुहु या यक़रउहु या यदउहु, ठीक है ना, अस्साइमु रोजेदार, इंदल इफ्तारी, हुआ वो दुआ ये है। इस तरह से करके आपका जो है ना ये जवाब पूरा बन जाएगा। तो इसका एक बार यहाँ से ये स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे यहाँ से आप, मैं इसको पूरा पूरा एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। बताइए, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा है आपको, जवाबात आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, एग्जाम में कितने नंबर आए, आप हमारे अपनी परफॉर्मेंस हमारे सामने आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा आप। ये सवाल नंबर, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, हाँ इतना काफ़ी है। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ये ले लेंगे आप, और दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में तीसरा स्क्रीनशॉट ये ले लेंगे, यहाँ पर दुआ भी आप लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।